थैंक यू जी वेरी मच शैलेंद्र जी। जी जी जी। जय जैनेन्द्र। सभी को जय मेरा जगन्नाथ। नमस्कार और मिच्छामि जी दुक्कडम। I am very much thankful to Professor Bhandari, Dr. Pokhrana, Dr. Prabhakiranji, Shailendraji, and our historian team of JS for inviting me to present a lecture here. Now, first Saraswati Vandana. Suyadeviya Bhagavai Nana Varniya Kambam Sandayam Tesim Khaveyu Sayayam Jesim Suyasaire Bhatti. In this presentation, I will answer few questions that you may have in your mind regarding this subject. Like questions like when the Jaina's most valuable site at Mathura was excavated, why it is called Kankali Tila? Is it really the Jaina's Dev Nirmita stupa was mentioned on any images? Another, it was destroyed by Ghazni in the 11th century. What happened afterwards? And what he grabs from our stupa. And now, which are the shrines at Mathura? So this all will see here in this presentation. So let us commence our yatra to Mathura Puri through these photographs of many valuable pictures. So first we will do some homework. The ancient town Mathura played a significant role in developing the art, culture, and religions of India. The Dev Nirmita Stupa offers a wide spectrum in studies like Mathura art, philosophy, and history of Jainism. Before the divisions began in this tradition, here the standing jinas are without linen but with open eyes. Sadhus are illustrated with one cloth or without linen on many artifacts. The Brahmi and Nagari inscriptions on images and artifacts cover the documentation of 2nd BCE to 12th CE. They reveal the year of establishment, name of ruling king, caste of donor, inspired preceptor with his Kula, Gana, and Shakha. This genealogy is available in Kalpa Sutra, Nandi Sutra, and many other scriptures. Here the images were established by persons engaged in various professions like Sartvaha, Navika, Nartaka, Ganika, goldsmith, ironsmith, cotton dealer, perfumer, Shravakas, etc. Showing Mathura city's secular fabric. Some of the donors like Uzzetika, Okharika, and Okha seems to be of foreign origin. This shows the systematic workmanship of the four-sided Jaina Sangha. In this first presentation, in this first slide, this is a pedestal of a Muniswarat Swami. So its detail we will see afterwards. Many people why? Many people associate stupa tradition only with Buddhism. Well, it is not so. Even in Jainism, the concept of erecting stupa was equally prevalent. They were once existed at Ashtapada, Vaishali, Bharuch, Mathura, and many other places. At Vardhamana in south also there was a one stupa till 11th century. Out of them all, Mathura stupa was in good condition until destroyed by invaders in early 11th century. Mathura was a chief business hub, pilgrimage center as a Mokshadai, and it was on the crossroad of the great Karma route. The city has its own history since Indus Valley civilization, as
early terracotta figurines and tools were recovered from here. Plenty of references are available in Ramayana, Mahabharata, and many other scriptures. Now, why this Devnirmita stupa is less remembered? हम उसको भूल क्यों गए? क्या हमको इसकी कुछ यादें नहीं है? इसका एक कारण यह है, हम खराब यादें याद रखने की कोशिश नहीं करते. No one wants to remember worst memories of invasions in the form of broken shikaras, temples, and images. Second reason, most of the Hindus either leave the city or converted or adoring their images silently in their home. The archaeology of Mathura Stupa came in limelight in the year 1836 when some ancient Gandhara art school specimen like this one, a railing pillar, a railing post showing a female in various postures. Though historians they feel that it's a very strange, and they have decided to excavate many mounds at Mathura, and they were some of the mounds named were Chobara Tila, Dhruv Tila, Katra Keshav Dev Tila. Katra Keshav Dev Tila is a Krishna Janmabhoomi, and this Kankali Tila was one of them. The reason behind the name Kankali, now I will explain this, as noted by Grosse in Mathura district memo published in 1873, that someone put a fragment of a carved pillar under a roof where at the remains of the Jaina stupa, and he called it a Kankali Devi shrine, that portion. So when the mound was excavated, on saying Kankali Devi's temple, everyone called it a Kankali Devi shrine and Kankali Tila. But at the same time, Grosse commented that many people were calling it as a Jaini Tila. Invasions of Mathura. This is very important. Being a prosperous city, very often it became a victim of invaders. But no one harmed much to the culture and temples in the entire Vrajabhumi. But in 2nd December 1018, the whole Mathura Nagar and surrounding area was attacked by Ghazni and with his army, and they damaged the full city and all the shrines. At Mathura, Ghazni noticed one huge wonderful building structure. He was informed that it was built by a deity. On seeing that structure, he commented, if anyone, what his comments was very important, if anyone should wish to construct a building equal to this, he would not be able to do it without expending 100,000 red dinars, and it would take 200 years to complete by skilled workers. What he looted? He looted the city and took away 5 feet 5 gold images. सोने की 5 फुट ऊंची 5 मूर्तियां वो लेके गया. They were fixed in the air without any support. That he mentioned. 2 rubies of the eyes costing 50,000 dinars. A sapphire purer than water, and some more jewels. Many silver images, and destroyed most of the shrines. Just imagine what a great our shrines were once upon a time. Afterwards, the stupa and most of the shrines were repaired within 5 years as per the image inscriptions of 1023 and 1078. But now it's very important. But city was again looted by Lodi, Nadir Shah, and Abdali. They plundered the temples and massacred the citizens. I will just explain. The last destruction was so heavy that the river Yamuna is said to have remained red, as it was mixed with a human blood.
the period afterwards, everything was matlab they all turned into ruins over the years. Once overflowing with travelers and pilgrimage, all became tilas. Now, the period of erecting stupa as per the pedestal of this image. This is a pedestal of a Munishwara Swami obtained from the stupa, has an inscription that it was established at the Dev Nirmita Thube. देव निर्मित स्तूप के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था. कौन सा साल था? कुशान एरा 79, दैट इज 157 कॉमन एरा. एंड किसने इसको प्रेरणा दी थी? वाचक आर्य वृद्ध हस्ती की प्रेरणा से. वो कहाँ कौन से गण के थे? कोटीय गण के वज्र शाखा के थे. और इसके बाद में 3 मूर्तियां और मेडिवल पीरियड की प्राप्त होती है, जिसे 970 कॉमन एरा और 1078 में एस्टेब्लिश किया था. उस पर भी ये शब्द हमें मिलते हैं कि इसे हमें श्री देवतेति विनिर्मिता स्तूप में हमें इसे स्थापित किया गया. इसके उपरांत 3-4 प्रासाद मतलब बहुत बड़ा श्राइन, बहुत बड़ा मंदिर. वो जो तोरण, प्रासाद के 3 तोरण बहुत बड़े बड़े मिले, जिसको बलहस्ती, उत्तरदासक और धर्म घोष ने स्थापित किया था. उसके ऊपर जो हमें साल जो मिलती है वो 200 BC की वर्ष हमें मिलता है. अभी एक्सकावेशन क्या हुआ वो देखते हैं. तो कंकाली टीला का एक्सकावेशन हुआ, बहुत बार हुआ. 1871 से 1896 के बीच में बहुत बार हुआ. और विंसेंट स्मिथ ने उसे कहा कि ये देख करके तो ऐसा लगता है कि ये ओल्डेस्ट अवेलेबल बिल्डिंग आफ्टर मोहनजोदड़ो की बात की ये बिल्डिंग है. एक ही वर्ष में 737 इमेजेस और स्कल्पचर्स मिले थे. आयक पटास, पिलर्स, डोर लिंटल्स, they were found in 1890 to 91. Here it's a plinth of a Dev Nirmita stupa, and this is the स्तूप का रिमेन्स है, और ये पूरा कंकाली टीला का रिमेन्स है. ये 2 स्तूपा की मैंने कंपैरिजन करी है. पहला जो स्तूप का जो भाग है वो लोन सोबिका का स्तूप है, और दूसरा सांची का स्तूप है. तो अब बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो सांची का जैसा ही दिखता है. तो इसमें आपको डिफरेंस मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 8 स्टेप्स है, और 2 तरफ जो गोख बने हुए उसमें मूर्तियां रखी है, जबकि सांची के स्तूप में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है. यहाँ पर 3 की कंपैरिजन करी है मैंने. ये जो स्तूप है कन्हा श्रमण का बीच का पोर्शन है, ये समावसरण है, और ऊपर ये जिगुरात है. ये 3 का आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है. ये 10 फुट वाइड चौड़ा, आगे पीछे दोनों तरफ डिपिक्शन किया हुआ डोर लिंटर है, जिसे हम बारवट कहते हैं ना, ऐसा है. इसके अंदर बीच में स्तूप है. इसकी पूजा करने को ग्रीक से सुपर्णा और किन्नरस आता है. ये आधे घोड़े और आधे मनुष्य है, और ये 5 वाले देवी देवता है, जिसे हम किन्नरस कहते हैं और ये सुपर्णा कहते हैं. ये बहुत बड़ा डोर लिंटर है. दिस इज ये भी 8 फुट चौड़ा तोरण है. इसमें भी यहाँ पर ये स्तूप है, ये जिन मूर्ति है और ये देवी की मूर्ति है. इसकी पूजा चतुर्वेद संघ, जिसे हम 4-fold कम्युनिटी कहते हैं, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, वो करते हैं. दोनों तरफ इंद्र माला लेके इसकी पूजा करने को आ रहे हैं. अभी ये जो बताया मैंने, अ पिलर विथ अ लायन वर्शिप, बहुत बड़ा नहीं है, 5-1 फुट का ही पिलर है. पर यहाँ पर ये 2री सदी पहले का है, 2nd BCE का है. इसके
पूजा जो कर रहे हैं ये कपल कर रहे हैं, एक जा रहा है एक ये आ रहा है, तो बहुत सुंदर डेपिक्शन है। और इसके बाद में प्रदक्षिणा कर रहे हैं, काम पूरा होने के बाद में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसका है। मथुरा कला दोनों तरफ मिलती है, आगे पीछे दोनों तरफ उकेरी हुई हमें प्राप्त होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जनरली सब लोग क्या पूछते हैं कि आयागपटा क्या चीज है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आयागपटा शब्द जो है हमें, ये 2 बाई 2 बाई 2.25 फुट का जो स्क्वायर पट है उसके ऊपर हमें मिलता है। डॉक्टर बुल्हर बुल्हर ने इसको जो डिफाइन किया है कि आयकपटा, he has defined आयकपटा एज अ टैबलेट ऑफ होमेज और अ टैबलेट ऑफ वर्शिप। पूजा का एक पट होता है, उसके आयक बोलते हैं हम। और दूसरा जो एक शब्द है आर्यक भी बोलते हैं। तो आर्यक स्टैंड्स फॉर ऑनरेबल एंड पट्टा स्टैंड्स फॉर प्लैंक। तो इट मीन्स के ये पूजा करने का पट है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन अंगविद्या, वाल्मीकि रामायण, वसुदेव हिंदी, उपपाति का सूत्र एटसेट्रा। और उसमें उसका नाम दिया है सुमन शिला और पूर्वी शिलापट। तो अभी हम बहुत सारे आयगपट देखते हैं, तो उसके पहले हमने आयगपट क्या कहते हैं वो बताया। अभी ये जो आयगपट इसमें जो देख रहे हैं, इसके नीचे ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शन आपको आप पढ़ सकते हैं। ये ब्राह्मी लिपि है, ये पहला न है, नमो अरिहंतानम से ये शुरू होता है। और ये इसमें लिखा है कि फागुयस नाम के नर्तक की पत्नी ने इसे स्थापित किया। ये दोनों तरफ, ये इसको जो शाल मंजिका कहते हैं, वो स्तूप के ऊपर रखी। और यहाँ पर भी ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स है, और ये इसका डोर है, दरवाजा है। सब मिला करके 27 आयगपटा हमें कंकाली टीला से मिला है। और सबका प्रारंभ होता है नमो अरिहंतानम से, क्योंकि यहाँ बीच में अरहत की प्रतिमा है, इसके लिए नमो अरिहंतानम से शुरू होता है। एक भी आया, सभी आयकपटा इंस्क्राइब्ड है, पर किसी में भी समंत लिखी हुई नहीं है। इसके लिए विद्वानों के अनुसार ये सब 200 BC के पहले के हैं। मोस्टली सभी आयकपटों के ऊपर सेंटर में ये तो स्तूपा होएगा या तीर्थंकर की प्रतिमा, तीर्थंकर होंगे। एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 जेवल्स। ये जो नंदी पाद दिख रहे हैं, ये नंदी पाद के साथ में ये जो सर्कल है उसके साथ में ये 3 जेवल्स बनता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नत्रयी जो से बोलते हैं वो बनता है। thus this all ayakpatas indicate the worship of a stupa, jinas and auspicious symbols। ये श्रीवत्स है। तो यहाँ जो सेंटर है इसको मैंने एनलार्ज किया है। तो ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, इसको 2 साधु इसकी पूजा करते हैं। दिस आयकपटा इज अ फाइन वर्कमैनशिप ऑफ मथुरा आर्ट स्कूल। एकदम बहुत सुंदर है। एट अ सेंटर तीर्थंकरा इज एनसर्कल्ड बाय 3 जेवल्स। और इसके ऊपर जो है ये 4 मंगल है और नीचे 4 मंगल है। और दोनों तरफ ये पिलर्स है, ये पिलर्स के ऊपर सिंह है, और यहाँ पर हाथी है, सॉरी यहाँ पर चक्र है, और यहाँ पर एलिफेंट है। ये जो ऊपर के जो है ये मीन युगल है, इसको मिरर बोलते हैं। ये श्रीवत्स है और वर्धमानक है। और नीचे 3 जेवल्स, फुल ब्लोन लोटस, भद्रासना, और ये कुंभ है। और ये बीच में यहाँ पर एकदम इंस्क्रिप्शन है। और ये दिल्ली के म्यूजियम में अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है। इसका मिडल पोर्शन भी मैंने यहाँ पर एनलार्ज करके बताया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मथुरा का कंकाली टीला ऐसा है कि यहाँ पर कुशाना पीरियड और प्री कुशाना से लेकर के मध्यकाल तक के हमको सब प्रतिमाएं का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कुशाना पीरियड की मूर्तियां जरा बताने की कोशिश की है। कुशाना पीरियड शुरू होता है, प्रारंभ होता है 78 से चालू होता है।
यहाँ पर ऑल इमेजेस है। मथुरा's characteristics, that is heavy well built body, ये सबको आपको एकदम हैवी दिखेंगे। महापुरुष के लक्षण, वीर पुरुष के लक्षण, हैवी वेल बिल्ट बॉडी, ओपन आइज, सबकी ओपन आइज है या हाफ ओपन आइज, ये स्ट्रेच हैंड्स है। पद्मासन में होंगी मूर्तियां तो उसके स्ट्रेच हैंड्स है और ब्रॉड शोल्डर से महापुरुष के निशाने, और सबके पेडेस्टल जो जिसको हम पद्मासन बोलते हैं या पिठिकासन बोलते हैं वो सिंपल है। यहाँ पर हमें आईब्रोज है वो एक ही लाइन में मिलती है, बीच में ब्रेक नहीं, एक ही लाइन में मिलती है, उसने सा बिल्कुल नहीं के बराबर में है। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुशाना पीरियड। अभी हम ये जो देखते हैं इन फर्स्ट पिक्चर, ये अरिस्टोनेमी है, ही इज फ्लैंकिंग बाय बलरामा एंड कृष्ण। कुशाना पीरियड की या मध्यकाल तक की जब भी मथुरा की मूर्तियां में अरिस्टोनेमी के साथ में कृष्ण बलराम साथ में होते ही है। उसका कारण कि ये ब्रजभूमि है और ये सब चचेरे भाई थे, कृष्ण बलराम के चचेरे भाई अरिस्टोनेमी थे। तो यहाँ उनकी सभी मूर्तियां तीनों भाइयों के साथ में ही हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी कर्ली हेयर है और कृष्ण बलराम हमने देख लिया। और यहाँ ये शायद उनका भाई रहने में भी हो सकता है, और इधर डिवोटीज है। और ये जो है दूसरी वो ऋषभ देव की है, ये आपके लटों से आप पहचाने जाते हैं, कॉम्ड हेयर उनके होते हैं। ये कॉम्ड हेयर आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, इंडस वैली में भी कॉम्ड हेयर मिल रहे हैं हमें, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हाँ, दोनों के जो प्रभाव मंडल है, तो मतलब ये बात की तो कुशाना पीरियड की, हमें लेट कुशाना पीरियड में पीछे सब में प्रभाव मंडल दिखता है। और ये ओरल बोलते हैं। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम? Now the first one is Aristonemi with Balaram and Krishna. Balaram is always recognized with a sarpa hood and Krishna with either शंख उनके हाथ में होता है या फोल्डेड हैंड्स। ये दूसरी है ऋषभ देव की है, ये यहाँ पर एकदम क्लियरली आप उनके केस की लटें देख सकते हैं। और ये जो एंशियंट श्रीवत्स है वो यहाँ मैंने एनालाइज करके बताया, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में इसी प्रकार के आप श्रीवत्स देख सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह के प्रभु के केश किस तरह के रहते थे। तो सबसे पहले तो है हम ये बताते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की फना जो है उस पर यहाँ जो ये इनके फना दिखती है, ये सबके ऊपर अष्टमंगल रहते हैं। मंगल हो 8 में से कोई भी एक मंगल ऊपर डेपिक्ट किया हुआ मिलता है। और ये सबके जो शिखा ऊपर नहीं है, ये शिखा नहीं है। और यहाँ पर भी कॉम्ड हेयर अलग प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, कभी राइट टर्न होंगे कभी लेफ्ट टर्न होंगे, और सबकी आईज खुली है। अभी कुशाना पीरियड से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो थोड़ा सा रेज उसनेस हमको आपको मिलेगा। उसनेस मतलब प्रभु की शिखा। और ये आप हाथ देखकर ये प्रतिमा के ऊपर अरिस्टोनेमी नाम उनका लिखा हुआ है। ये ब्रॉड शोल्डर है और ये बीच के आप दूरी आप देख सकते हैं कितने हाथ दूर है। और ये आप देखेंगे मथुरा म्यूजियम के अंदर है और इसकी हाइट 28 इंचेस है, 28 इंच के मस्तक है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिमा कितनी बड़ी होगी। यहाँ जो से मैंने कहा ये पार्श्वनाथ भगवान की फना के ऊपर स्वस्तिक दिख रहा है, वर्तमानक दिख रहा है, अष्टमंगल में से ये सब यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे तो
ये देख के हमको गंधार कला की इम्प्रेशन मथुरा आर्ट में आ गई है। और यहाँ श्रीवत्स है और बिल्कुल स्माइलिंग फेस है, और ये सब कुषाण पीरियड के हैं। अभी ये देखेंगे तो बिल्कुल एकदम यूनिक है। प्रतिमा का जो पेडेस्टल है, और यहाँ पर एक पात्र में गोचरी है, ये साधु को बोराने के लिए बताया, और इनके हाथ में झोली है, झोली में पात्र रखा हुआ होगा। तो ये क्या है डेपिक्शन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आचारण सूत्र के अंदर है, और जनरली सभी सभी तरह के क्या है, जब भी कोई वृद्ध साधु या बीमार साधु वहां उपाश्रय में हो, या जंगल में हो, या गुफा में हो, तो उसके लिए गोचरी दूसरे साधु को लानी पड़ती है। तो पात्र में लेके जाएगा, और पात्र को देख करके पीछे कोई एनिमल्स उनके पीछे नहीं लगे, इसके लिए ये झोली की व्यवस्था की गई है, ऐसा अवधान है। तो ये हमें यहाँ से 2000 साल पहले के ये पेडेस्टल के ऊपर से हमें पता चलता है। ये सेंटर के अंदर चक्र है, और ये दोनों साइड पर लायन है, और बीच में इंस्क्रिप्शन है। और प्रतिमा के हाथ से मालूम पड़ता है, अलग अलग प्रकार के हाथ की यह मुद्रा होती है। यहाँ पर खंडित करी हुई मूर्तियां से हमें उस समय का लोग कैसे रहते थे, और उनके इंस्क्रिप्शन से, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो सेंटर के अंदर जो है, ये चक्र धर्म चक्र है, और ये जो है 3 जेवल्स रत्नत्रयी बताई है। तो रत्नत्रयी की आराधना से मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो है साधु साध्वी जो रत्नत्रयी की आराधना करते हैं, ये बताया। और यह साधु सवस्त्र है, और ये साध्वी है। ये साधु है कैसे मालूम पड़े कि उनके हाथ में रजोहरण है, दोनों के हाथ में रजोहरण है। मथुरा आर्ट स्कूल का बहुत सुंदर प्रतिमा ये है। ये फ्रंट पोर्शन है, ये पीछे का है, और ये साइड है। और ये जो श्रीवत्स है वो यहाँ पर मैंने एनालाइज करके बताया। ये मतलब 7th कुशाना एरा। तो 7th के अंदर आप जोड़ेंगे 78, तो अभी का कॉमन एरा आ जाएगा। ये मथुरा की कला जो है, कार्विंग द एनी आर्ट मोटिव ऑन ऑल साइड्स, दैट इज इट्स पिक्युलरिटी। तो जब तक मथुरा आर्ट स्कूल थी तब तक ये चालू था। और यहाँ पर जो है, ये साधु है, ये साध्वी है, और ये एडोरेंट्स है, ये इसे हमें मालूम पड़ता है। ये सर्वतोभद्र इमेजेस है। सर्वतोभद्र एक ही शिला में से उसको कार्विंग होता था, और ये चारों तरफ मंगल प्रसारित करने के लिए उकेरी जाती थी। सर्वतोभद्र शब्द भी हमें इसके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और सभी सर्वतोभद्र प्रतिमाएं स्तंभ के ऊपर, स्तूप के बाहर स्तंभ के ऊपर स्थापित की जाती थी, ताकि सभी तरह मंगल प्रसारित हो। तो ये जो यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, राजेंद्र कोश के अनुसार सर्वतोभद्राणी मुखानी यस्य, जिसको चारों तरफ मुख हो, वहां से भद्र हो, मंगल हो, इसे सर्वतोभद्र कहते हैं। और यहाँ जो जैसे बताया ना, ये सब मथुरा से प्राप्त हुई है। और किसी पे कुशा घास है, घास है। ये सर्वतोभद्र के नीचे सर्वतोभद्र प्रतिमा है, यहाँ पर उसका इंस्क्रिप्शन है। ये करीब 6 फुट से करीब 8 फुट की है। और यहाँ नीचे जो प्रोजेक्शन है, बचा हुआ पार्ट, इससे मालूम पड़ता है इसको स्तंभ पे स्थापित किया गया था। और इसका इंस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि इसको स्तंभ पे स्थापित किया है। और यह है गुप्तकालीन बैठी हुई सर्वतोभद्र प्रतिमा।
अरिष्टा नेमी भी था, बलरामा एंड श्री कृष्ण। यहाँ पर ऋषा यह है, बेल है, यह लोटस है, ये बलराम है, ये कृष्ण है, पूरा परिवार है, अम्बा माता है, अंबिका है, इसके हाथ में गोद में बालक है, मतलब पूरा देव मंडल यहाँ पर है। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। परिकर बहुत ही सुंदर है। अरिष्टन में भी था चंवरधारी, चंवरधारी आपको एकदम क्लियरली दिखते हैं, ये चंवरधारी दोनों साइड पर है। और प्रभाव मंडल लोटस का है, कमल का है। पेडेस्टल के ऊपर वर्टिकल व्हील है और इसके आसपास में डिवोटीज भी है। और ये सिंह की मुद्रा देखना, सिंहासन है तो सिंह की अलग अलग मुद्राएं यहाँ पे बताई गई है। अभी गुप्ता पीरियड जब भी चालू हुआ तभी भी कंकाली टीला में स्तूप के अंदर तो प्रतिमाएं बनती थी। वहां पर सिर्फ स्तूप नहीं था, वहां पर बहुत सारे मंदिर थे, श्वेतांबर के भी थे, दिगंबर के भी, सबके मंदिर थे। बहुत सारे मंदिरों की प्लिंथ, उपाश्रय वगैरह की भी वहां से मिली है। और प्रतिमाएं और शिल्प भी बहुत सारे मिले हैं। तो ये जो लेट गुप्ता पीरियड की है चौमुख जी, और ये इससे मालूम पड़ता है, ये जो है पार्ट कुशन का एक पार्ट नीचे है, हैंगिंग रहता है, और उस पर कारीगर अपनी कला बताता है। इससे हमें पता चलता है कि ये गुप्ता पीरियड की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये दिगंबर संप्रदाय की ऐसा उस पर जो आलेख है उससे मालूम पड़ता है। और ये पार्श्वनाथ भगवान के नीचे सिर्फ फणा का ये साइन बची हुई है। ये सर्वतोभद्र श्वेतांबर संप्रदाय की है, जो जिस पर संवत 1080 की है। जब भी करीब करीब ईस्वी सदी के 9वीं सदी के बाद में हमें कंकाली टीला से दोनों संप्रदाय की मूर्तियां अलग अलग मिलती है, और उसके पहले की कॉमन मिलती है। ये एक ही प्रतिमा का चार बाजू का, चार साइड के फोटोग्राफ्स है। और यहाँ जो शिलालेख है उसको मैंने एनलार्ज करके यहाँ बताया है। ये जो है सेकंड प्रतिमा, ये ऋषभ देव की है। ही सिटिंग अंडर अ चैत्य वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और ये चार दोनों साइड पर नवग्रह बताए हुए हैं। नवग्रह का भी डेपिक्शन यहाँ हमें मिलता है। ये राहु केतु आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 4 और 4 8, मतलब ये राहु केतु को साथ में बताया। ये धर्म चक्र है स्टैंडिंग, और दोनों तरफ भक्त बताए हैं। आर्यावती नाम की देवी की पूजा करते थे उस समय में, तो ये पूजा के लिए पट बताया है। ये दिस इज सेटअप बाय आव मोहिनी, पूजा के लिए। तो इस पर जो शिलालेख है वो क्षत्र आर्यावती का है। 42 42वें वर्ष में महाक्षत्र के समय का है। कुशाना पीरियड के पहले वहां पर जो क्षत्र पर आ जाते हैं ना, उस समय का यह है। तो हमारे यहाँ पर भी आर्यावती नाम की देवी थी, और ये बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। और देवता मूर्ति नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है वराक्षम पुस्तकम पद्मा आर्या इति इति आर्या। ये सरस्वती का एक फॉर्म ही बताते हैं। द अर्लिएस्ट पानी यहीं यहीं तो चलेगा, पिंडो। थैंक यू, थैंक यू। सरस्वती देवी की जो सबसे पुरानी वर्ल्ड में, जो दुनिया में जो प्रतिमा है, वो कंकाली टीला से मिली है। इनके हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तप्रत, और ये मैंने एनलार्ज करके बताया है। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, और ये साधु है, जैन साधु, इसके हाथ में कमंडल है। क्योंकि ये अमृतवर्षिणी देवी है तो कमंडल जैसा बताया है। और ये श्रावक हाथ जोड़ के खड़ा है। अब इसकी जो खासियतें है ना, वो ये है कि इसका जो पेडेस्टल है, ये जो
हम बताए पेडेस्टल, उसका जो प्रारंभ होता है सिद्धम शब्द से प्रारंभ होता है, और इसे रंग मंडप के अंदर स्थापना करी थी। किसने स्थापना करी थी? गोवा नाम के लुहार ने, ब्लैक स्मिथ ने ये सरस्वती माता की स्थापना करी थी। किसकी प्रेरणा से? वाचक आर्य देवा कोटिय गण स्थानीय कुला અને વૈરી શાખા के कुषाण वर्ष 54 में इसको स्थापित किया था। और उस समय कार्तिक माक्षर वगैरह नहीं थे, तो 4th month ऑफ विंटर 10th डे फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। मतलब कौन सी सीजन थी, ऋतुएं थी, ऋतु के हिसाब से कौन सा ऋतु का कौन सा दिन वैसा ही गिना लिखा जाता था। तो ये सरस्वती की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। उसका एक हाथ में हस्तप्रत है और दूसरा हाथ ब्लेसिंग मुद्रा में हो सकता है, पर सरस्वती नाम इसके अंदर ही मिलता है हमें। अभी ये 1960 में मिली है, मथुरा से, क्षेत्रपाल है। इसके ऊपर जैन प्रतिमा जी है, उसके हाथ में इसका जो व्हीकल है स्वान, वो लगाया बैठा है, हाथ पकड़ा हुआ है, और इसके हाथ में क्षेत्रपाल है, तो रक्षा के लिए कुछ हाथ में साधन है। इसकी जो पांव की पोजीशन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आर्किक कैरेक्टर बहुत ही प्राचीन है। और ये चक्रेश्वरी देवी है, इसके 10 हाथ वाली है, और इनके सब हाथ में चक्र है। ये 10वीं सदी की है, ये भी कंकाली टीला से मिली है। तो कंकाली टीला वो हमारा भंडार है जहां से हमें इतनी सब चीजें मिली है। ये लक्ष्मी है, ये भी कंकाली टीला से मिली है। ये कुबेर हो सकते हैं क्योंकि बड़ा पेट है, और ये कुबेरा हो सकती है, ये भी देवी है क्योंकि सब देवी हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में ही होंगी। और ये कमल है, मतलब ये लक्ष्मी है। और ये अंबिका है। अंबिका की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाथ में यहाँ पर बालक है, एक बालक यहाँ है, और ऊपर अरिष्ट नेमी है, और बलराम है, और कृष्ण है, और नीचे सभी देवियां हैं। जो मतलब देवियों का अंकन भी 9 देवियां, ये मातृका है, चालू हो गया था अंकन। ये 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, दोनों की गोद में बालक है। तो कुबेरा देवी का जो शास्त्रों में उल्लेख आता है उसमें आता है कि उसके अंक में बालक है, तो ये कुबेरा होने के चांसेस बहुत है। जिसने जैन स्तूप की जो सुपासनाथ भगवान में के समय में जो ये देव निर्मित स्तूप बना था, उसकी रक्षिका देवी थी कुबेरा। ऐसा विविध तीर्थ कल्प में रेफरेंस आता है, तो ये कुबेरा वो हो सकती है। बहुत सारी मूर्तियां हमें यहाँ से मिली है। 35 नंबर ना, अजमुखी देव, जिसे हम हिरण्यगमेश देव कहते हैं ना, ये उसका बकरी ये सदस्य उनका फेस होता है। इसके हाथ में हमेशा बालक होते हैं, और यहाँ इसकी काउंटर पार्ट, मतलब उनका स्त्री रूप है, इसके गोद में बच्चा है, और ये बालक जो है ना मेल चाइल्ड है। तो ऐसी करीब करीब बहुत सारी मूर्तियां, मैं आपको जस्ट बताऊं, 16 मूर्तियां हमें नेगमेश की कंकाली टीला से मिलती हैं। ये बहुत रेयर मूर्ति है, ये इंडिया में नहीं है, बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, पर इसका फोटोग्राफ मैंने ले लिया है। तो इसके हाथ में क्लब है, और ये बलराम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका ये साधु और एक श्रावक हाथ, यहाँ पे साधु है और यहाँ 2 श्रावक है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। और इसके पीछे जो है, पीछे भी चित्रण है, वो क्रोकोडाइल जैसा है, पर ये वुम्ब जैसा, मतलब पेट के अंदर हो ऐसा बताते हैं। तो ये बहुत चांसेस है कि डायनासोर का एग हो, क्योंकि बहुत सी जगह पर हमें डायनासोर के एग का डिपिक्शन मिलता है, तो पॉसिबिलिटीज आर। ये स्विट्जरलैंड के अंदर ये मूर्ति है। अभी अभी
बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगी मैं। ये जो है आपको यहाँ पर बताया, ये 3 इंस्क्रिप्शन के हिसाब से बताया है। ये जो पेडेस्टल ऊपर का है, इस क्लियर कट लिखा है कि संवत 299 में इसको स्थापित किया है। पर संवत 299 विद्वानों के हिसाब से कुशाना पीरियड के पहले वो टाइम पर इतने ज्यादा थे नहीं, तो इट इज पॉसिबल कि ये महावीर संवत है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है नमः सर्व सिद्धा नाम अरहंतानाम महाराजा धीरा, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मैं बोल रही हूँ। नमः सर्व सिद्धानाम अरहंतानाम महाराजा धीराज संवत्सरे 299 हेमंत मासे सेकंड दिवसे फर्स्ट दिवसे सॉरी 299 संवत्सर हेमंत मास सेकंड दिवस 1 अर्हतो महावीर से प्रतिमा स्थापित है। मतलब ये बहुत चांसेस है कि कार्तिक शुद्ध एकम के दिन इसको स्थापित किया गया। अच्छा, स्थापित करने वाले सब बाहर के हैं, इंडिया के नहीं है। ओखारिका है, धितु जेटिका है, ओखा है, श्राविका, अर्हतायन ने स्थापित हो, अर्हतायन में स्थापित किया, मतलब कि उस समय मंदिर थे। ये दूसरा जो पेडेस्टल है ये हैवी एंकलेट्स है, मतलब ये लक्ष्मी की प्रतिमा है। और ये है विजय श्री नाम की एक लेडी ने, एक स्त्री ने 1 महीने के उपवास के बाद में ये प्रतिमा का स्थापन किया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ कुशाना पीरियड के अंदर स्त्रियां अपने ससुराल वाले की पूरी जीनियोलॉजी लिखती थी, ये मेरा पति, ये ससुरा जी वगैरह। उसी हिसाब से वो मदर के साइड के माता पुत्र, माता पुत्री, ग्रैंड मदर, ऐसा सब लिखते हैं, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी सालबंजिका किसे कहते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी सालबंजिकाएं प्राप्त हुई है। तो उस समय सोसाइटी में स्त्रियां किस प्रकार रहती थी वो बताया गया है। और इसके साथ में जरोखा, जरोखा के ऊपर जरोखा बताया और नीचे सालबंजिकाएं बताई। सालबंजिकाएं मतलब पुत्री। आजकल हमें सालबंजिकाएं मंदिर के अंदर या तो रंगमंडप में मिलेगी या गुम्बद के ऊपर या साइड मंदिर के बाहर की साइड वॉल में मिलती है। तो ये जो है ये सालबंजी का है, इसका एनलार्ज रूप है और ये स्केच है। ये जो स्केच है ये मेरे को इंदौर के मिसिस अमिता पारेख ने बना के दिए थे, तो अभी दूसरे और स्केच भी आएंगे। ये ऊपर का जरोखा है, ये दीप प्रागट्य कर रही है, इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। ये और स्केचेस है, यहाँ इसका क्लियर नहीं दिखता है, तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। और ये स्पिन कर रही है बॉल को उस समय भी, और ये इसके हाथ में बॉल है। ये भी सब सालबंजी का है, मतलब ये इसके हाथ में पूजा का पात्र है, यहाँ पे कलश है और ये फ्लावर फूल तोड़ रही है। शाला नाम के वृक्ष से ये फूल तोड़ रही है, इसके लिए सालबंजी का बोलते हैं। ये भी है और ये भी इसका मिरर में अपना रूप देख रही है। ये फ्रंट और ये साइड, ये पीछे का पोर्शन, ये फ्रंट और ये पीछे का पोर्शन। स्तूप के दोनों तरफ, तोरण के तरफ सालबंजी का, जैसे सांची के स्तूप में मिलता है ऐसे ही है कंकाली जैन देव निर्मित स्तूप के अंदर भी हमें मिलता है। और इसको ये हाथी के ऊपर है और ये मनुष्य के ऊपर है। ये स्टोरी बहुत सुंदर है। कंबल संबल नाम के कंबल और संबल जिनदास के 2 बैल थे। रोज पूजा करने जाते थे। पूजा मतलब क्या बोलते हैं, दर्शन करने जाते थे, अंदर तो नहीं जाते होंगे, बाहर से ही जाते होंगे। पर एक दिन उसका जो दोस्त था, मित्र था, उसके बिना पूछे वो लेके गया। कहाँ पे लेके गया, वो दौड़ाने के लिए लेके गया रेस के अंदर। तो अधमुए हो गए, फिर उसको छोड़ने आया तो उसको अधमुए देख करके उसका दोस्त उसे जिंदास उसको नौकार मंत्र सुनाता है और फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मित्र को जो बोलता है, यहाँ पर क्या है आप डेपिक्शन देखो, तो मित्र मुंह फेर लेता है। और ये सब का वर्णन हमको शास्त्रों में मिलता है।
किस तरह से मिलता है मैं आपको ये बताती हूँ। विविध तीर्थ कल्प में लिखा है कि मथुरा के अंदर निंदास नाम के श्रावक के 2 बेल थे। तो इत्थ कंबल संबल नामाणो वसह पोहा जीर्णदास संसंगीय पड़ी बुद्धा और नाग कुमारा हो नाग कुमार नाम के देव हुए और उन्होंने महावीर स्वामी के भगवान के नावारूढ़ व सगम निवारिश नाव के अंदर जब भी प्रभु विराजमान थे तब उनको जो उपसर्ग हुआ ना उसका उन्होंने निवारण किया। अभी आगे चलते हैं। तो ये एक और दूसरी स्टोरीज है, वहां पर स्टोरी भी डेपिक्ट करी हुई है जिस तरह से सांची के स्तूप में है। और ये मथुरा का स्तूप सांची से पहले था, ये तो विद्वानों को भी सबको मालूम पड़ता है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रो ऑफ महावीरा, महावीर स्वामी का गर्भाहरण का चित्र ये है शिल्प। ये फ्रंट पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। तो गर्भ ये हो जाता है ना काम, उसके बाद में इंद्र ये जो हिरण्यकशिपु देव है वो इंद्र को कहता है कि काम हो गया। तो इसके बाद में ये सभी सेलिब्रेशन का सीन है। इसका जो हमें हिरण्यकशिपु नाम है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता में एक डिजीज का नाम में बताया है, अ डिजीज इन अ प्रेग्नेंट वुमन इज कॉल्ड अ नेगमेस पहरिता। जब भी उसका वो सीज हो जाता है, हलन चलन नहीं करता, वो रोग का नाम उन्होंने नेगमेस पहरिता दिया है। और उन्होंने अजानन कभी नाम का इस्तेमाल किया है ये देव के लिए। और ये सब वीएस अग्रवाल ने लिखा है और थोड़ा मैंने 3-4 साल रेफरेंस करके लेके आई हूँ। In Jainism, the transfer of embryo is considered as one of the अक्षेरा। जो अक्षेरा मतलब अजायबी, 10 वंडर्स जो होते हैं उसमें ये एक। और ये मैंने एनालाइज किया और अबाउट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दिस ही माइट बी महावीर स्वामी के, इसके हाथ में रजोवरण है, ऐसा ये हिस्टोरियन लोग ने उल्लेख किया हुआ है। ये जो छत्र है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर अष्टमंगल है, ये एक छत्र है, उसका थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ा और एनालाइज किया। यहाँ पर शंख है, ये शंख निधि है, ये सब आप देख सकते हैं। ये मीन युगल है, त्रिरत्न है, स्वस्तिक है। आप कहेंगे ये क्या है? ये पोर्शन है ना, जब श्रावक हाथ जोड़ेगा, छोटा छत्र है, बहुत बड़ा भी नहीं है, करीब 2-2.5 फुट का है। तो जब इस श्रावक हाथ जोड़ते हैं तभी अष्टमंगल उनके सिर पे आते हैं। इस तरह का यहाँ पर ये डेपिक्शन है। ये पेडेस्टल ऑफ जीना, ये एक मूर्ति का जो नीचे का पद्मासन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एक तो धर्म चक्र यहाँ पर स्टैंडिंग है, स्टैंड पे रखा है और खड़ा है। और यहाँ पर एक वस्त्र से ये भी है, और ये वस्त्र सवस्त्र है, और यहाँ पर एक छोटा वस्त्र के वाले साधु है। मतलब दोनों प्रकार के साधु यहाँ साथ में खड़े हैं। और यहाँ साध्वी है, जो हाथ में रजोहरण है वो साधु साध्वी है, और जो हाथ जोड़ के खड़े हैं वो डिवोटीज है। यहाँ पर ये बालिका है, ये भी बालिका है, और ये इंस्क्रिप्शन है। अभी ये हमेशा से हमको प्रश्न रहता है कि अभी यहाँ पर क्या है। तो ये जो है 84 का दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ पर बाहर आप स्तंभ देख सकते हैं, और यह केवल ही जम्बू स्वामी की चरण पादुका है। यह एरिया 84 कहलाता है क्योंकि जम्बू स्वामी का आयुष्य 84 वर्ष का था। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है। श्वेतांबर मंदिर घिया मंडी में है। सॉरी, ये जो 84 चौराया है, वहां पर 84 नाम का टीला भी था, और उधर से बहुत सारी मूर्तियां और स्तंभ वगैरह मिले हैं, वो मथुरा म्यूजियम में है। और ये घिया मंडी में श्वेतांबर संप्रदाय का मंदिर है। ये 400 साल पहले की प्रतिमा है।
ये 1930 के आसपास में प्राप्त हुई थी, तो इसको यहाँ पर स्थापित किया। और इस पर जो लिखा है अकबर, जलालुद्दीन अकबर सूरत रान, ऐसा लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा कि ताकि प्रतिमा को कोई खंडित नहीं करे, इसके लिए ऊपर इसको सुरक्षता के लिए नाम लिखवाने की राजा ने इजाजत दी थी। अभी एक है, हमको हमेशा से रहता है कि जैसे यहाँ सब में यहाँ पर कुछ ऐसा अलग प्रकार का डेपिक्शन मिलता है कि नहीं। तो ये जो स्तूप के आजू बाजू में इस तरह से जुड़ी हुई सालबंजी का ऐसी, तो ये मिडल पोर्शन जो है, मिडल वाली सालबंजी का, इसको मैंने एनलार्ज करके बताया। तो इसके हाथ में कुछ मोबाइल जैसा कुछ हाथ का है, दिख रहा है, और ये सुन रही है। और आपको डाउट आए कि ये श्योर है कि नहीं है, तो गले में उसने हेडसेट जैसा रखा हुआ है सुनने के लिए, यूं ये बताया है। तो हमको मालूम पड़े कि ये सब प्रथाएं पहले भी थी, और ये कुछ टैबलेट जैसा इसका हाथ में लग रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइट की इंपॉर्टेंस ये है कि टू कॉम्प्रिहेंड द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, द आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस साइट play a very important role. Before the excavation of the site, most of the historians considered Jainism as an offshoot of Buddhism. They were calling Jainism as a orthodox Buddhism. मतलब जैनिज्म का तो नाम ही है, जैनिज्म है ही नहीं, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म है ये। But when excavation carried out in 1881 and between and 1883, many Jaina images and artifacts furnished with Brahmi inscriptions came in light. On seeing this, historian doubted कि जैनिज्म सेपरेट रिलीजन है क्या नहीं। टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी, हाँ सॉरी, टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी जी जी, डिबेट, हाँ कंप्लीट अभी, करिए दीदी। हाँ हो जाएगा, बस जी जी लास्ट जी ही जी, है। ओके ओके ओके, ये जी जी, ओके डिबेट जो ओके, बुलाई गई ना दो ग्रुप के बीच में, तो ये साइड से जो जी इतनी सारी मूर्तियां वगैरह मिली ना, इससे हमें मालूम पड़ा कि जैनिज्म सेपरेट रिलीजन है। और फिर वर्ल्ड में भी सभी लोग ने माना कि जैनिज्म की परंपरा ऋषभदेव भगवान से चालू होती है, क्योंकि यहाँ से ऋषभदेव भगवान की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। ओके, और ये जस्ट आपको ये अनुलोम सविका का आयक पट है। ये साधु है और ये इंद्र है, कोई अननोन प्लेनेट का भी चित्र है, ये भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी, प्रभा किरण जी, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन आंसर्स?